Now question number 9. The following table shows the coordinates of point S, M and T. 3 points हैं S, M, T. उनके coordinates यहाँ show किए गए हैं इस table में. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. हर एक segment के लिए ये ST के अलग अलग coordinates दिए गए हैं और हमें बताना है कि हर बार जो m यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं क्या ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं है. देखो मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया. मिड पॉइंट का मीनिंग हो गया कि जो डिस्टेंस s और m के बीच का है वही डिस्टेंस m और t के बीच का है. और हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो हम sm के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, mt के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि अगर ये इक्वल आती है दैट मीन्स m इज द मिड पॉइंट. sm की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो. s के कोऑर्डिनेट है -3 0 और m के कोऑर्डिनेट है 0 0. सो इट विल बी 0 प्लस 3 होल स्क्वायर. प्लस इसलिए होगा क्योंकि 3 यहाँ एक नेगेटिव नंबर है. सो 0 माइनस माइनस 3 विल बी प्लस 3. सो इट इज 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर लो. सो इट विल बी 3 square, that will be 3. That means the distance between SM is 3 units. Similarly, हम MT के बीच की distance निकाल लेंगे. x2 minus x1, it will be 3 minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square. क्योंकि M और T दोनों के लिए y coordinate 0 है. It will be 3 square, so answer will be 3 units. So is M the midpoint of ST? Yes, it is the midpoint of ST. Reason because SM is equal to MT. इनकी length equal है. अब यही logic हम आगे 3 parts में लगाने वाले हैं. Next is second part. S is 2 3 and M is 3 4. तो हम S और M के बीच की distance निकालेंगे. It will be 3 minus 2 whole square plus y2 minus y1. It will be 4 minus 3 whole square. 3 minus 2 is 1, so it is 1 square. 4 minus 3 is 1, it is 1 square. It is root 2. That is SM. Now let's find out MT. M which is 3 4 and T which is 4 5. Let's find out the distance. So we do x2 minus x1 which is 4 minus 3 whole square plus 5 minus 4 whole square. This comes 1 square plus 1 square. This comes root 2. Again SM is equal to MT. So it is a midpoint. Let's come to third part. S is 0 0. Origin point पर S है. M is 0 5. और इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो x2 minus x1 that is 0 and y2 minus y1 that is 5 minus 0 whole square. It will be 5 square, that means 5. So SM is 5. Now similarly we will find MT. M is 0 5 and T is 0 minus 10. Let's find out the distance. It is 0 square plus minus 10 minus 5 whole square. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आने वाली है. It comes minus 15 whole square. 15 is the distance of MT. So this is 5 units and this is 15 units. Now this distance is not equal. SM is not equal to MT. So is M the midpoint? No, M is not the midpoint. Fourth part is S is given minus 8 7 and M is given 0 minus 2. Let's find SM distance. That will be x2 minus x1. It will be 0 plus 8 whole square plus y2 minus y1. It will be minus 2 minus 7 whole square. Then this will be 8 square plus minus 9 whole square. 8 square comes 64, 9 square comes 81. It is square root of 145. Now let's find MT. x2 minus x1 which is 6 minus 0 whole square and y2 minus y1 which is minus 3 plus 2 whole square. It will be 6 square and minus 1 whole square. It is 36 plus 1 root 37. Again SM है square root of 145 and MT है square root of 37 which is not equal. So SM is not equal to MT. So M is not the midpoint of
एस टी। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट पर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मिड पॉइंट है या नहीं है। When now next, अब इसी क्वेश्चन में आगे है when m is the midpoint of st, जब m st का मिड पॉइंट होता है, can you find any connection between the coordinates of mst? तो क्या आप mst के कोऑर्डिनेट्स में कोई कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो? तो अगर आप देखो तो देखो, अगर s ये पॉइंट है और t ये पॉइंट है और m इनका मिड पॉइंट है। अब s अगर हम फर्स्ट केस लें, s के कोऑर्डिनेट है -30 एंड t के कोऑर्डिनेट है 30। अगर हम m के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें कि वो क्या है, तो हम s का ये अगर x1 मान लें और ये x2 मान लें t के कोऑर्डिनेट को, सिमिलरली y वैल्यू को y1 और y2 मान लें, तो m की x वैल्यू हो जाएगी x1 plus x2 upon 2, which will be -3 plus 3 upon 2, it will be 0. Similarly, m के लिए y की वैल्यू हो जाएगी s का y coordinate which is 0 and t का y coordinate which is 0. So this comes 0. m के coordinates आते हैं 0 0. m जब मिड पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू s और t के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उसका हाफ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप सेकंड और थर्ड पार्ट में भी ये चेक कर सकते हो। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये मिड पॉइंट है। अब m के कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करें, सो इट विल बी s का x कोऑर्डिनेट विच इज 2 प्लस t का x कोऑर्डिनेट विच इज 4. 2 plus 4 upon 2, it is 6 upon 2 which comes 3. एंड y कोऑर्डिनेट के लिए इट विल बी s का y कोऑर्डिनेट विच इज 3 एंड t का y कोऑर्डिनेट विच इज 5 अपॉन 2. 8 अपॉन 2 इट कम्स 4. दैट्स व्हाट यू सी हियर। m की वैल्यू है 3 4। अब जहां पर m इनका मिड पॉइंट नहीं है, लेट्स से हम चेक करते हैं सेक्शन 4। अगर m मिड पॉइंट होता तो कोऑर्डिनेट क्या होते? x s का x कोऑर्डिनेट प्लस y का x कोऑर्डिनेट, it will be -2 upon 2, it will be -1. और m के y कोऑर्डिनेट के लिए हम करेंगे s का y कोऑर्डिनेट प्लस t का y कोऑर्डिनेट upon 2, it will be 4 upon 2, it will be 2. So the point which will have coordinates -1 and 2, ये इनका मिड पॉइंट होगा, लेकिन m के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 एंड -2, इसीलिए m यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है। तो कनेक्शन क्या है कि जब m मिड पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से आप किसी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। Now question is, use the connection you found to find the coordinates of P given that M is the midpoint of A and B. हम अभी जो हमने 9th क्वेश्चन में कनेक्शन स्टैब्लिश किया है मिड पॉइंट का, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर A और B ये एक लाइन है और M इसका मिड पॉइंट है, तो हमें A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3 एंड -4, B के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है और मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -7 एंड 1। कैन बी फाइंड आउट बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो m के लिए x की वैल्यू क्या होगी? वो होगी a की x वैल्यू, b की x वैल्यू अपॉन 2, और m के लिए y की वैल्यू क्या होगी? वो होगी a की y वैल्यू प्लस b की y वैल्यू अपॉन 2। अब m की वैल्यू हमें दी गई है, m का x कोऑर्डिनेट है -7, सो दिस विल बी -7 इक्वल्स a की x वैल्यू जो है 3 प्लस b की x वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 2। सिमिलरली m की y वैल्यू जो है 1, इट विल बी इक्वल टू a की y वैल्यू विच इज -4 प्लस b की y वैल्यू अपॉन 2। अब ये इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये हो जाएगा 3 प्लस x वैल्यू ऑफ b इक्वल्स -7 टाइम्स 2, 3 plus x value of b will be -14, so will be -14 minus 3, it will be -17। और अब हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं। it will be -4 plus by, y value of b will be equal to 2, इनका मल्टीप्लाई हो गया, then y value will be equal to 2 plus 4, that will be 6। so हमें b के x और y दोनों वैल्यू मिल गए हैं। b की x की वैल्यू है -17 और y की वैल्यू है 6।
लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। ए बी एक लाइन है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। अब यहाँ पर देखो ये ट्राई सेक्शन है, बाई सेक्शन आपने किया है, एंगल्स का बाई सेक्शन आपने किया है जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ट्राई सेक्शन का मीनिंग हो गया कि इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स हियर इट इज पी, हियर इट इज क्यू एंड ए पी। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ होगी वो पी क्यू के इक्वल होगी, इसी तरह से क्यू बी के इक्वल होगी। दीज ऑल आर इक्वल। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यू विल सी कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। अब इसी इंफॉर्मेशन से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ वी टेक द लाइन सेगमेंट, हम A से Q तक का पार्ट ले लेते हैं और P इसका मिड पॉइंट हो गया। और अब P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो जब P मिड पॉइंट होता है तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके x की वैल्यू हो जाएगी A का x कोऑर्डिनेट प्लस Q का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 विच इज 4 प्लस x2 अपॉन 2। ये हो गई P के लिए x1 की वैल्यू। सिमिलरली P के लिए y1 की वैल्यू हो जाएगी A का y कोऑर्डिनेट विच इज 7 एंड Q का y कोऑर्डिनेट विच इज y2 अपॉन 2। तो ये यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस मिल गए हैं x1 और y1 की फॉर्म में। सिमिलरली हम दूसरा सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है P पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है Q पॉइंट। अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट माने हैं x2 y2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 16 एंड -2। अब बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट तो Q के लिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P का x1 पॉइंट प्लस B का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2। दैट मीन्स इट विल बी x1 प्लस 16 अपॉन 2। सिमिलरली y2 की वैल्यू हो जाएगी P का y कोऑर्डिनेट विच इज y1 और B का y कोऑर्डिनेट विच इज -2 अपॉन 2। दिस कम्स y1 -2 अपॉन 2। ये इक्वेशन 3 हो जाती है और ये इक्वेशन 4 हो जाती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये x2 और यहाँ x2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम x2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हमें ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 3 यूज करके x2 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 जो है 4 प्लस x2 अपॉन 2, इसे अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x1 इक्वल्स 4 प्लस x2। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर हम यहाँ ये इक्वेशन सॉल्व कर लें, इक्वेशन 3, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स x1 प्लस 16। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे। आप यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x1 विल बी 2x2 माइनस 16। अब अगर हम x1 की वैल्यू प्लेस x1 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, तो x1 की वैल्यू आई है 2x2 माइनस 16, इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। 2x2 माइनस 16 इक्वल्स 4 प्लस x2 अपॉन 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 4x2 माइनस 32 इक्वल्स 4 प्लस x2। अब x2 हम एक साइड ले जाएंगे, इट विल बी 3x2 एंड 32 को हम राइट साइड ले जाएंगे, इट विल बी एडेड। सो 3x2 इज 36. So x2 will be 36 divided by 3, it will be 12. तो हमें q का कोऑर्डिनेट x2 मिल गया। सिमिलरली हम यहाँ पर y2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर y2। अब ये इक्वेशन 2 और 4 से हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू दी गई है y1 इज 7 प्लस y2 अपॉन 2 और इक्वेशन 4 में हमें वैल्यू दी गई है y2 इक्वल y1 माइनस 2 अपॉन 2। तो हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, y2 इक्वल्स, अब हम इसमें इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 से y1 की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, 7 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2। हमने इस y1 की जगह पर ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी है। अब देखो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2y2 इक्वल्स 7 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 2। यहाँ पर 2 LCM हो गया, तो इट इज 7 प्लस y2 माइनस 4 एंड इट इज 2y2। अब अगेन 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 4y2 इक्वल्स 7 प्लस y2 माइनस 4। y2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी 4y2 माइनस y2 एंड राइट साइड में बचता है 7 माइनस 4 विच इज 3। सो दिस बिकम्स
3y2 equals 3, that means y2 equal 1। अब हमने x2 y2 कोऑर्डिनेट्स माने थे q के, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। q विल बी 12 and 1, ये हो गए q के कोऑर्डिनेट। अब हमें एक लाइन मिल गई है, देखो a और p, a q और p इनका मिड पॉइंट है, तो a इज 4 7, q इज 12 1, तो यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी a का x कोऑर्डिनेट प्लस q का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, which is 4 plus 12 upon 2, which is 16 upon 2, it becomes 8। and p के लिए y की वैल्यू हो जाएगी a का y कोऑर्डिनेट and q का y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2, it is 7 plus 1 upon 2, it is 8 upon 2, it is 4। so you get p coordinates 8 and 4। अब आपके पास p और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, p is 8 4 and q is 12 1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन द पॉइंट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose center is the origin 0 0, what is the radius of circle k। हमें यहाँ पर बताना है कि अगर एक सर्कल बना हुआ है और जिसका ओरिजिन है 0 0, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं a b c, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये एक सर्कल पर लाई करते हैं। तो देखो ये पॉइंट सर्कल पर कब लाई करेंगे, जब o से, अगर यहाँ पर a है, o a o b o c ये सब सेम डिस्टेंस पर होंगे, तभी ये एक सर्कल पर लाए होंगे। That means we have to prove that OA is equal to OB is equal to OC। और हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, तो रेडियस के लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी इनमें से किसी एक लाइन की। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो हम फाइंड आउट करते हैं OA, जो कि O जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। अब इसके बीच की डिस्टेंस कैसे होगी, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला राइट करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये OA की डिस्टेंस निकल आएगी। सो इट इज, अब O के हैं 0 0 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस 8, सो दिस इज 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8 होल स्क्वायर, बिकॉज 8 माइनस में है, जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इट विल बी 1 प्लस 8 स्क्वायर which is 64, it is root 65। OA की डिस्टेंस आती है, लेंथ आती है root 65। लेट्स फाइंड आउट OB। अब OB के लिए हम अगेन सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 4 है, तो इट इज 0 प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो इट इज 0 माइनस 7 होल स्क्वायर। दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 square is 16 and 7 square is 49. It comes 65. So OA and OB they are equal. Now let's find OC. OC के लिए again same हम करने वाले हैं, C के coordinate minus 7 minus 4 है. That means it will become 0 plus 7 whole square and 0 plus 4 whole square. So this comes 7 square plus 4 square. That means 49 plus 16, which comes root of 65। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर OA, OB and OC are equal, so the points lie on a circle, that is proven। Now we have to find the radius। अब रेडियस देखो, जो सर्कल है उसका सेंटर है O, अब OA ये भी रेडियस है, OB ये भी रेडियस है, OC ये तीनों ही रेडियस है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 65, या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, इट इज 8.06 यूनिट्स। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, गिवन द पॉइंट्स D एंड E, चेक वेदर D एंड E lie within the circle। अब D और E पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या ये सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो D और E सर्कल के अंदर तब एग्जिस्ट करेंगे जब हम OD डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे या OE डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो स्क्वायर रूट ऑफ 65 से कम होगी। अगर वो OA से कम होगी तो दैट मीन्स D सर्कल के अंदर कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, तो वी विल हैव टू डू दैट। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है OD, O जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। OD will be 0 minus minus 5, that means 0 plus 5 whole square plus 0 minus 6 whole square. It will be 5 square plus 6 whole square, that will be 25 plus 36. This comes a square root of 61. That means OD
OA से स्मॉलर है। सो OD की लेंथ स्मॉलर है OA से, दैट मीन्स D lies within the circle। अब इसी तरह से हम E के लिए चेक कर लेते हैं, OE की लेंथ कितनी है। OE के लिए होगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 9 गिवन है। सो दिस विल कम square root of 9 square, that means it will come 81 और it will come 9। तो आप देख सकते हो कि square root of 81 which is 9 ये इससे ग्रेटर है, तो OE because it is greater than OA, E पॉइंट सर्कल के बाहर होगा और D पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। Hence D lies within circle and E lies outside circle। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।